मुख कट बिच प्रगट होवा जिथे बाबा पैर धरे जिथे बाबा पैर धरे जया बन सोवा गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुपति प्रवान करनी वाही गगनदीप सिंह जी कीर्तनी जथा श्री गुरु सिंह सभा जिन्होंने आप जी गुरबाणी कीर्तन द्वारा निहाल किया है। साध संगत जीओ, असीं विनती भागी हाँ साढ़े पास पंथ के महान विद्वान श्रोमणी कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भाई साहब भाई अजीत सिंह जी पहुंचे हुए हैं, जेडे आप जी को एक घंटा गुरबाणी विचार के नाल आप जी गुरचरण नाल जोड़नगे। ਜਿਹੜੀਆਂ मेरिया मातावां भैणां या वीर बाहर खड़े हैं वो हॉल के नाल नाल साइड से भी कारपेट बिछाए हैं, उत्थे बह सकते हैं। नाल नाल ही गुरु का अटुट लंगर चल रहा है, जिन्होंने भी लंगर छकना होवे वो बड़े ही सजगे ढंग के नाल आस्ते मेरी संगत चो दूसरे को ना कोई दिक्कत आए वो जाके लंगर छक के वापस आ सकते हैं। सरकार ने कोविड गाइडलाइन वास्ते सानू पूरा स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया है, सो सानू उन्होंने भी देखना है, इस करके लंगर भी नाल चल रहा है, कीर्तन दरबार भी चल रहा है। तो आप जी को बेनती है जिन्होंने लंगर छकना होवे जाके लंगर छक के फिर दोबारा भी आ सकते हैं। सो इन्नी बेनती प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू। वाहिगुरू साहिब जी प्रभ दातो जाचित एक शरणा मिले दान संतरेण जेह लग भाव जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै दे दर्श मन चाओ भग
ਭਗਤ ਇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਵਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਆਸੀਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਉਦਮ ਮਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤਿਉ ਕਰਨਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀ ਹੈ। ਵਜਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦਾਸਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੱਠੇਵਿੰਡ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਮ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਬਨਾਰਸੀ। ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਨ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। मैं आरंभ में बेनती इस करके की क्योंकि इस नगर का नाम पहला नाम सी राय भोए दी तलवंडी, पर जदों गुरु नानक साहब महाराज जी की इत्थे आमद हुई, ये भी जदों जिस वेले आप इतिहास पढ़ोगे, आप उन्हें वचन पढ़ रहे सी, जिथे जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। ਤੇ मैं महान कोश ਨੂੰ पढ़ रहा सी ਤੇ महान कोश ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕਿਆਣਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਬਾਦ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਆਏ ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਬਣ ਗਈ। जे किते गुरु नानक साहब महाराज जी सतगुरु गए सूफी चीरे, उत्थे महाराज जी की जोगियां नाल वारता हुई ते प्यारिओ ओ धरती का नाम सूफी चीरे तो नानक चीरा पिया। ते जे किते गुरु नानक साहब महाराज गोरखमते चले गए ते उत्थे जदों वारता हुई ते इस धरती का नाम पै गया गोरखमते तो नानक मता। एक अदीब ने बड़ा पैरा लिखिया, और लिखता है बूद नानक कारफे मर्दे खुदा। बाबा नानक उस खुदा का एक ऐसा मर्द सी, राज है मार्फत जा राह कुशा, जिसने संसार में एक चंगी रहनी पैनी बख्शी। ते जे गुरु नानक साहब महाराज संसार ते ना होंदे ते लोकाई ये संसार उजड़ पई होंदी। ध्यान देना प्यारिओ, असी शब्द वरतते हाँ नानक, और मैं ये भी कह दवां दुनिया हमेशा बड़े राहां ते चलती है। किते भी मंजिल ते सफर करना होवे ते यक लगत मन दे विच एक गल आएगी कि जिस मंजिल वाल मैं जाना है उधर राह किहड़ा जांदा है। बंदा हमेशा सुखल्ले ते बड़े राहां दे उत्ते तुरदा है, पर धन गुरु नानक साहब महाराज ऐसे मर्द सन जेड़े बड़े राहां ते नहीं तुरे प्यारे। इंज कह दवां जिधर जिधर नूं गुरु नानक साहब महाराज तुरे उधर उधर राह बनते गए तो दुनिया गुरु नानक साहब महाराज जी के पिछे चली गई। एक अदीब ने लिखा, कहता मर्द वो नहीं जो जमाने के साथ चलते हैं, मर्द वो है। धन गुरु नानक साहब महाराज एक ऐसे मर्द सन, ताई तो मोहम्मद इकबाल को लिखना पिया, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को जगाया एक मर्दे काबल ने ख्वाब से। धन गुरु नानक साहब महाराज बड़े राहां ते नहीं चले। धन गुरु नानक साहब महाराज दुनिया ते लुकाई नूं अपने मगर लाया। और प्यारिओ आप शब्द पढ़ते हाँ नानक, जदों असीं नानक शब्द पढ़ीए ना, नानक शब्द के अर्थ कई विद्वानां ने कीते। भाई वीर सिंह जी ने नानक शब्द के अर्थ नानक प्रकाश विच कीते ते वो लिखते हैं नानक अन अक भाव जिन्हों कोई दुख नहीं, जेड़ा सदीवी तौर ते संसार नूं सुख वंडण वाला है। इवें ही भाई नंद लाल जी ने नानक शब्द के अर्थ किए ने प्यारे, और उन्होंने फारसी में बड़ा पैरा लिखा और लिखते ने हरदोए नून नाम पाक्ष नाइमो नासीर
आलिफ मैं ना आह काफ आखिर रा कबीर समझण दा यतन करिया जी। नानक शब्द के अर्थ बड़े प्यारे कीते उन्होंने। जिवें संसारिक तौर पर असी इंग्लिश सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, तो वो जोड़े 26 अल्फाबैटिक होंगे ABCDEF इस तरह आप पढ़ते हैं। जिवें हिंदी दे विच क ख ग घग्गा घग्गा ग ये सारे शब्द आते हैं। पंजाबी दे विच ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हाहा आते हैं। इसी तरह जदों असी फारसी नूं पढ़ते हैं ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्यारिओ अलफ बेग नून काफ ये शब्द आते हैं। हुण भाई नंद लाल जी ने अर्थ बड़े प्यारे किए। ध्यान देना, समझना, अज तो बाद जदों भी साडी जुबान ते नानक शब्द आवे तो सानू ये समझ आनी चाहिए है कि नानक शब्द दे विच किन्नियां अजमतां। भाई नंद लाल जी लिखते ने हर दोए नून नाम, दोए हर दोए नून, नून नन्ने नूं अरबी दे विच कहंदे ने, फारसी दे विच कहंदे ने नून। ध्यान देना, नन्ने नूं नून कहंदे ने। वो कहंदे दो नून ने, हर दोए नून नाम पाक, ये दो नन्ने बड़े पवित्र ने। हर दोए नून नाम पाक नाइमो नासीर। पहले नन्ने का अर्थ करते ने कहते नाइमो, ते दूजे का अर्थ करते ने नासीर। दो नन्ने ने ना, जो असी नानक लिखते हैं नानक, कहते जेड़ा पहला नन्ना है उसका अर्थ है नाइमो, ते जेड़ा दूजा अर्थ किया वो कहते ने नासीर। अगे जिक्र किया कहते हर दोए नून नाम पाक्ष नाइमो नासीर। आलिफ, आलिफ का अर्थ होता है कन्ना। कह लगे जेड़ा कन्ना है आलिफ है। आलिफ हर दोए नून नाम पाक्ष नाइमो नासीर। आलिफ में ना आहद काफ आखिर रा कबीर। कह लगे जेड़ा कन्ना है उदा अर्थ है एक, ते फिर शब्द वरत्या काफ, ते काफ का अर्थ किया है कबीर। तो कह लगे जदों गुरु नानक साहब पातशाह का नाम असी लईए ते धन गुरु नानक साहब महाराज जी के नाम के नाल पहला जेड़ा नन्ना है उदा अर्थ है नाइमो। ते नाइमो कहते ने प्यारे नियामतां देण वाला। नियामत की है? जिहड़ी संसार ते कोई किसी नूं दे ना सकिया उहनूं कहंदे ने नियामत। दुनिया ते धन दौलत जमीन जायदाद जगीरा हर कोई संसार ते एक दूजे नूं दे दिंदा है प्यारे, पर जिहड़ी नियामत सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने संसार नूं दित्ती ना प्यारे, वो अज तक कोई भी संसार ते किसी नूं दे नहीं सकिया। वो नियामत केड़ी है? ध्यान देना, भाई गुरदास जी ने जिक्र किया जिस वेले चार वर्णा दे विच संसार वंडिया होया सी, जात पात शिखरां ते सी, ते मनुख मनुख दे उत्ते जुल्म कर रहा सी और नाम ही धर्म का दे रहा सी। जो आप पढ़ते हाँ चार वर्ण चार मजहबां, जग विच हिंदू मुसलमानी खुदी वकीली तकबरी खिंचो तान करन तंगाने, गंग बनार सिंधुआ मक्का काबा मुसलमाने, राम रहीम कहांदे एक राह दो राह भुलाने, सच किनारे रह गया खै खै मरदे बामण मोलाने। कैसी खुदी वकीली बनी पई है। जात पात दे नां ते मनुखता दे उत्ते जिहड़ा हमला कर रही सी। और उस वेले ध्यान देना, एक कहना बड़ा सौखा है प्यारे, पर जिस वेले गुरु नानक साहब महाराज ने तलवंडी की धरती तो भाई मर्दाने को अपना साथी बनाया। पुरातन जन्म साखी में लिखिया मिलता है कि बाबे नानक के कन्ना ते रबाब की आवाज पई ते धन गुरु नानक साहब महाराज कोल चले गए ते जाके कहन लगे दानिया
रबाब बड़ी भली बजाउंदा है। भाई मरदाना जी का पहला नाम सी दाना। ते दानिया मेरा संग करेगा। दाना हस पिया को कहना बाबा ये किवें हो सकता है, मैं मरासी हाँ, मैनू दुनिया नीवी जात वाला आखदी है, तेरी जात बड़ी उच्ची है, तेरा मेरा संग किवें बन जाएगा। ते दूजी गल नाल कही, कह लगे बाबा क्योंकि भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब पातशाह तो 10 साल वड्डे सन। और भाई मरदाना दाना जी कह लगे बाबा ये किवें हो सकता है, तेरा मेरा संग नहीं हो सकता, तेरी जात उच्ची है, तेरी किरत उच्ची है, ते बाबा मैं ते नीवी जात वाला हाँ। सतगुरु कह लगे दानिया मेरा संग करेगा। दाना कहना बाबा जे मैं तुर पिया ते दुनिया ने कभी भी बाबा मैनू छड्डना नहीं। सतगुरु कहते दुनिया की परवाह नहीं करी। दानिया तू मेरा संग करेगा। दाना कहता हाँ मैं करांगा, पर बाबा मन में एक सवाल है। महाराज कह लगे दस। पहली गल दानिया दाना महाराज नूं कहंदा है महाराज ना ते तुहाडी मेरी शक्ल एक है, ना तुहाडा मेरा खान पीन एक है, ना तुहाडी मेरी किरत एक है, जात दा भी नीवा हाँ। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने बड़ा प्यारा बचन किया। महाराज कह लगे दानिया की आख्या कि शक्ल एक नहीं, जे तू मेरिया 3 गल्लां मान लवें ते तेरा ते मेरा संग सदा अमर हो जाएगा। महाराज कह लगे दसो। मरदाना कहता है दसो महाराज। धन गुरु नानक साहब महाराज ने कहा दानिया पहली गल की आखी तेरी मेरी शक्ल एक नहीं, अज तो बाद कदी केस कतल ना कराई, तेरी मेरी शक्ल एक हो जाएगी, ध्यान देना। दूजी गल आखी दाना आखदा बाबा ठीक है शक्ल एक हो जाएगी, पर तेरा मेरा खान पीन किवें एक होएगा। सानू तो लोग पतला ते रोटी देंदे ने, सानू तो पिंडां दे बाहर विहड़े बना के दिते हुए ने, सानू ते दुनिया नीवी जात वाला कहती है बाबा मेरे नाल बह के खा लेगा। धन गुरु नानक साहब कहते हाँ मैं खा लवांगा, पर ध्यान रखी अज तो बाद जगत झूठ तंबाकू किसी नशे का सेवन ना करे। ये दूजी सिक्ख्या सी, ध्यान देना। महाराज आखन लगे दानिया तू आख्या तेरी मेरी शक्ल एक नहीं, जे तू मेरा संग करना है अज तो बाद कभी केस कतल ना कराई। दानिया तेरा मेरा खान पीन एक हो जाएगा, जे अज तो बाद कभी किसी नशे नूं हाथ नहीं लाएगा, जगत झूठ तंबाकू नशे का सेवन नहीं करेगा। तीजी गल आखन लगा बाबा ठीक है शक्ल एक हो जाएगी, खान पीन एक हो जाएगा, पर बाबा तेरी मेरी किरत एक हो जाएगी। बाबा तू पटवारी दा पुत है, तेरी किरत बड़ी उच्ची है, ते मैं घर घर जाके बधाइयां मंगण वाला, मैं लोगों की वडियाई करदा उस्तत करदा, ते बाबा तां मेरा जेड़ा है गुजारा चलता है। सतगुरु गुरु नानक साहब कह लगे किरत भी एक हो जाएगी। दानिया उस्तत ते वडियाई तू नहीं करदा है, उस्तत ते वडियाई मैं नहीं करदा, बस फर्क इन्ना है तू दुनिया की वडियाई करदा है ते मैं उस करते की वडियाई करदा। अज तो बाद दानिया रबाब वजे, पर किसी दुनिया की सिफत नहीं करनी, उस करते की वडियाई करनी है। जदों दुनिया की वडियाई छड्ड के करते की वडियाई करेगा, मैं भी करते की वडियाई करांगा, तू भी करते की वडियाई करी, ते तेरी मेरी किरत भी एक हो जाएगी। कितनी वड्डी नियामत सी प्यारिओ, जिन्हां लोकां नूं दबे कुचले होए सन, किसी नूं शूद्र कह के दरकारिया जा रहा सी, किसी नूं नीवी जात वाला कहा जा रहा सी। उस वेले गुरु नानक साहब महाराज ने बाह पड़ी। और मैं ध्यान देना ऐसा नहीं है कि धन गुरु नानक साहब पातशाह तो पहला जात पात की आवाज नहीं उठी।
आ पढ़ के देखो भगत नामदेव जी का बचन, हस्त खिल तेरे त्योरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हिंगड़ी जात मेरी जात मराया, शीपे का जन्म काहे को आया। जात पात के खिलाफ भगत नामदेव जी ने आवाज चुकी, बाबे कबीर ने आवाज चुकी। जो इतों तक आख दिता जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आण बाट काहे नहीं आया। ऐसा नहीं है। गुरु नानक से पातशाह तो पहला जात पात की आवाज उठी नहीं, पर ध्यान देना वो आवाज बुलंद ना हुई, क्योंकि भगत कबीर जी, भगत नामदेव जी, भगत सहबान ब्राह्मण की अखौती वर्ण वंड चो नीवी जात विचों सन। ध्यान देना, मैं शब्द वरत रहा, ब्राह्मण की अखौती नीवी जात विचों, वर्ण वंड विचों। ते जदों वो गल करते सन ते कहते तां नीवे ने गल करते ने, पर इनकलाब लिया गुरु नानक साहब ने। जिस वेले एक खतरी दे घर पैदा होए ते महाराज ने आवाज चुकी ते आख्या, दुनिया के लोगों जिन्हों तुसी नीवी जात वाला कहते हो, मैं उन्हां दे नाल। आपां बचन पढ़ते हाँ, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनकै संग साथ, वड्डिया सो क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नजर तेरी बख्शीश। ये इनकलाब सी उस वेले जिस वेले जात पात शिखरता ते होवे ते धन गुरु नानक साहब महाराज एक मरासी नूं जिन्हों नीवी जात वाला आख्या जाता सी, बाबे नानक ने अपना साथी बनाया। ये नियामत सी प्यारे, किड्डी वड्डी नियामत होएगी। आप तक के वेखियो, जिस वेले स्त्री नूं पैर की जुत्ती आख्या गया, रामायण में तुलसीदास लिखता है, ढोर गवार शूद्र पश नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये लोग पैर की जुत्ती ने, जिवें ढोल कुटिया जाता है, जिवें पशु कुटिया जाता है, इवें स्त्री नूं पुट के रखो, ये पैर की जुत्ती है। जिस वेले किसी भी धर्म ने स्त्री नूं मान नहीं दे दिता, ध्यान दे लेना, इस्लाम धर्म अंदर स्त्री मोमना की अगवाई नहीं कर सकती। वो मस्जिद दे विच मर्दां दे नाल खड़ी होकर नमाज अदा नहीं जे कर सकती। दो मर्दां दे बराबर एक स्त्री की गवाही है। बुद्ध धर्म अंदर तामपदियां विच लिखिया है कि जे स्त्री भिक्षण बन जाएगी, बुद्ध धर्म की उम्र घट जाएगी। सेंट पॉल लिखता है, स्त्री रब की प्राप्ति में रुकावट है। जैन मत ने लिखा है कि ये स्त्री जिहड़ी है मर गई, उस तो बाद जदों बंदे दे रूप में आएगी फिर मरेगी, फिर इसदी मुक्ति है। जोग मत लिखता है स्त्री बघियाड़न है। उस वेले जिस वक्त स्त्री नूं पैर की जुत्ती मन्निया जाता सी, जिस वक्त आख्या जाता सी ये रब की मजेदार गलती है। कोई आखदा सी स्त्री विच आत्मा नहीं है, और उस वेले गुरु नानक साहब महाराज ने गल कहनी कि भंड जमी है भंड निमी है, भंड मंगण भी आहो, भंडो होवे दोस्ती भंडो चलै राह, भंड मुआ भंड भाली है, भंड होवे बंधान, सो क्यों बंदा आखिए जित जमै राजा। ये नियामत सी प्यारे, कहना बहुत सौखा आ, किते ताके वेखियो साडे घर दे विच भी कोई गुरमत दे खिलाफ कोई कारज हो रहा होवे ना, ते असीं रोकदे नहीं हाँ। रिश्तेदार परिवार वाले तू छड्ड, तू क्यों नाराजगी लैंदा है। पर धन गुरु नानक साहब पातशाह ने संसार नाल मत्था लाया, दुनिया दियां उन्हां कुरीतियां नूं बदल के रख दिता और आख्या नहीं प्यारे हो, मैं उन्हां लोकां दे नाल हाँ जिन्हां नूं तुसीं नीवीं जात वाला आखदे। स्त्री पैर की जुत्ती नहीं, जिस स्त्री की कुख तो राजे महाराजे पैदा होण वो स्त्री नीवी नहीं है। और जदों असीं सतगुरां दे जीवन की साखी पढ़ते हैं ना प्यारे, जदों महाराज जी नूं जनेऊ पहनाया गया, सारी रस्म की गई, ये नहीं है, ये बहुत वड्डा धमान घर विच रचिया जाता सी, ते जतन किया गया कि गुरु नानक साहब नूं जनेऊ पाया जाए। तो जो पंडित हरदयाल जनेऊ पाउण लगा, गुरु नानक साहब महाराज ने कहा सी पंडित जी रुक जाओ,
मैनू ये दसो भी ये पाउणा क्यों है? कहन लगे ये तू धर्मी बन जाएगा। तो महाराज कहन लगे भी आ जिहड़ा जनेऊ तुसीं मैनू पाउण लगे हो ते जिहड़ा तुहाडे गल विच जनेऊ पिया मैनू इन्हां 'च फर्क लग रहा है। कहन लगा हाँ ये फर्क है। की फर्क है जी? कहन लगे ये ब्राह्मण वाला है, ये सूत दा है, ते जिहड़ा तैनूं पाया जा रहा है ये सण दा है। जिहड़ा ब्राह्मण ने पाया वो तिन तेरे तक वाला है ते ये दो तंदां वाला है। महाराज कह लगे भी ये नाल धर्मी बन जाता है? कहते हाँ। तो सतगुरु महाराज ने कहा सी ना फिर इंज करो पंडित हरदयाल जी मेरी भैन नूं जनेऊ पा दिओ, मेरी मां नूं जनेऊ पा दिओ, ये धर्मी बन जाएंगे। तो की आख्या पंडित हरदयाल ने? ऐसा नहीं हो सकता, स्त्री नूं नहीं पाया जा सकता। सतगुरु महाराज कह लगे ये पा कौन कौन सकता है? कह लगे ब्राह्मण पा सकता है, खतरी पा सकता है, वैश्य पा सकता है, शूद्र नूं अधिकार नहीं है, स्त्री नूं अधिकार नहीं है। महाराज कह लगे एक ऐसा धर्म है जिहड़ा वड्डियां पा रहे हैं। सतगुरु महाराज कह लगे जे जनेऊ पाउणा है ते मैनू वो जनेऊ पाओ जिहड़ा मेरे नाल तक निभे। एक समा वो है जदों गुरु नानक साहब महाराज नूं जनेऊ पाया जा रहा है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहते मैं तेरा जनेऊ नहीं पाउणा। ते एक समा वो भी आया जिस वक्त नौवें नानक दे रूप दे विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते मैं जनेऊ लैन नहीं देना। समझ लेना। और ये भी कह दवा कोई तुहानू भी सवाल कर सकता है भी जे गुरु नानक साहब महाराज ये गल कहते ने भी ये जिहड़ा जनेऊ आपां वचन पढ़ते हैं दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवट ये जनेऊ जी का हई ता पांडे घत ना ये टुटे ना मल लगे ना ये जरे न जाए धन सो नानक ना धन सो मानस नानका जो गल छले पाए। बई ओ जनेऊ पा जिहड़ा सड़े ना जिहड़ा गले ना जिहड़ा नाल जावे। सवाल तो कोई सानू भी कर सकता है भी आ श्री साहब आ कृपान ये किहड़ा नाल जाएगी। पर प्यारे फर्क है उधर वंडियां ने इधर बराबरता है। इधर सभे साझी वारसदार की गल है। इतने कोई जात पात नहीं है। इतने तो अमृत छक के खंडे बाटे की पौड़ लैके ते जात पात खत्म हो जाती है। ये फर्क है। तो एक समा है जिथे धक्के का धर्म दिता जा रहा है तो महाराज कहते मैनू धक्के का धर्म प्रवान नहीं है। एक पासे जबर नाल आख्या जा रहा है पा ते एक पासे धक्के नाल लाया जा रहा है। गुरु नानक का धर्म जबर जुल्म ते धक्के के खिलाफ है। प्यारे सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने नियामतां दित्तियां संसार नूं प्यारे ते लिखिया भाई नंद लाल जी ने कह लगे हर दोए नून नाम पाक्ष नाइमो ते फिर अगे शब्द है नासीर ते नासीर का अर्थ होंदा है मददगार। गुरु नानक साहब दुनिया के मददगार बने प्यारे। जे कोई इखलाक के पक्ष तो डिगया सी गुरु नानक साहब महाराज ने उन्होंने चुकया है प्यारे। ध्यान देना आप जो गुरु नानक साहब महाराज जी का जीवन पढ़ोगे ना तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने बंदे तो नफरत नहीं की थी, उहदे औगुणा तो नफरत की थी जी। इंज कह दवा बाबा आप गए आप जाके रोग पछाड़िया ते केवल रोग ही नहीं पछाड़िया फिर उहदी दवा भी दिती प्यारे। ताकि वेखो महाराज कहते ने सो जीविया जिस मन वसिया सोए। जिउंदा वो है जिहदे हिरदे दे विच मालिक वाहिगुरू दा नाम है। नानक अवर ना जीवस कोई। वो नहीं जिउंदा जिहदे हिरदे विच मालिक दा नाम नहीं। तो जिउण तो भाव सवासां दा नहीं। मैं भी बेनती कर जावां जिस वेले पावन बाणी नूं पढ़ोगे प्यारिओ तीन तरह की मौत जे। एक मौत है शरीर का मर जाना सवासां का मुक जाना और जिहड़ी ये मौत है ना ये प्यारे सारियां नूं आउंदी है।
चाहे गुरुद्वारे आंदा है नहीं आंदा, बाणी पढ़ता है नहीं पढ़ता, ये मसला नहीं है। जो उपजियो सो बिनस है। इस शरीर की मौत है। एक मौत है जिथे जमीर मर जाता है। तो महाराज ने आख्या जो जमीर मरिया ना उदों तू मेरी नज़र विच मर गया। आप बचन पढ़ते हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कही है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। वो मुर्दा है। सो एक सवासा का मुक जाना है, एक जमीर का मर जाना है, ते एक है गुरु वाला होके मर जाना। महाराज ने तीसरी मौत को प्रवान किया जो गुरु वाला होके मरेगा। ते महाराज ने कहा सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवस कोई। वो नहीं जिउंदा। ताकि वेखो प्यारिओ, सज्जन जिन्हों दुनिया ठग आखदी सी, किस पद्धर तक पहुँच गया होएगा जदों बंदियां नूं रात नूं दवाई देंदा है, कोई कहते मार देंदा है, खूह विच सुट देंदा है। तो सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज उत्थे गए और महाराज वेख रहे हैं, वो प्रशादा देते हैं। आप साखी जानते हो, मैं संखेप जिक्र कर रहा हूँ। कहते प्रशादा छक लो। गुरु नानक साहब महाराज कहते मरदाने इतों कुछ खाना नहीं। हुण उधरों सज्जन इस उड़ीक विच है कि जदों गुरु नानक दे भाई मरदाना सो जाणगे ते उस वेले इन्हां नूं लुट लवांगे। सतगुरु गुरु नानक साहब भी इस उड़ीक विच नहीं भी ये मेरे वाल वेखे ध्यान करेगा तो उदों शब्द का तीर चलाया जाएगा। हाँ, एक बेनती मैं कर दवा प्यारे, ये लोग भुले जरूर सन पर ईमानदार बहुत सन। समझियो गल। भावा गुरु नानक साहब महाराज जी नूं सतगुरु सज्जन ठग मिलिया, भावा नूर शाह जादूगरनी, भावा वली कंधारी, ये लोग भुले जरूर सन पर इन्हां अंदर ईमानदारी बहुत वड्डी सी। आप पूछोगे किवें? ध्यान देना। हुण सज्जन वेख रहा है, गुरु नानक साहब महाराज ने सतगुरु ने वेख्या भी हुण इहदा ध्यान साडे वल है। सतगुरु ने कहा मरदानिया छेड़ रबाब बाणी आई है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने कीर्तन आरंभ किया। प्यारे सुई राग का बचन उचारिया। आप बचन पढ़ते हैं, उजल कह चिलकना घोटम कालड़ी मस, धोतिया झूठना उतरै जे सो धोवा तिस, सज्जन सही नाल मैं चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसा। संखेप चर्त करा। महाराज ने क्या सज्जना, कह दा भांडा है, कह दा भांडा। जिवें पुराने समय में कह दे भांडे वरते जाते सन, उन्हां दी चमक बहुत सी। पर ध्यान रखना, जे उन्होंने कली ना कराया जाए तो अंदरों कालक छड़ते सन। महाराज कह लगे सज्जना कह दे भांडे वांगो चमकदा है पर असलीयत है अंदर कालक है। और ध्यान रखना प्यारे, जिस वेले सज्जन ठग नूं आ गल बाबे नानक ने आखी ना भी सज्जना ना दा सज्जन है तेरे अंदर कालक है, इतिहास पढ़ लेना प्यारे। उस सज्जन ने अगों कोई दलील अपील नहीं जे की। ये लोग ईमानदार सन। गुरु नानक साहब पातशाह के चरणों से ढह गया, तौबा कर ली ते इतिहास आखदा वो सज्जन ठग भाई सज्जन बनया। वो तुलंबे की धरती ते धर्मशाल बना दी ते प्रचारक भी भाई सज्जन नूं ला दिता। किड्डी वड्डी ईमानदारी है जी। अपने अवगुण नूं सवार जिहड़ा है स्वीकार कर लेना, मान लेना। आप इतिहास पढ़ो, जिस वेले सतगुरु सुल्तानपुर की धरती तो आवाज़ मारते ने ते आखदे ने ना कोई हिंदू ना मुसलमान। इहदा भाव की सी? जिहड़ा सवाल सतगुरु महाराज जी नूं जदों मक्के गए तो उत्थे सवाल किया गया, मक्के शहर है, काबा उन्हां दा पवित्र स्थान है, तो उत्थे हाजियां ने सवाल कर दिता। आप पढ़ते हैं भाई गुरदास दियां वारा कि पुछन फोड़ किताब नो हिंदू वड्डा मुसलमानो ही, बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजो दोनों। गल अमल दी है।
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪਸ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਓ ਕਿ ਚਲੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਠਕਾ ਬੈਠਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸਾਖੀ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਤ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਤਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਮਨ ਵਾਲਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਭਾਵ ਤਨ ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਅਖਵਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, हम जब भी तेरे दर पे गए हाथों में लेकर फूल गए, वो फिरना हर्षू मक्के का, वो रुकना गिरते पर्वत का, हर बात तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए। किते ना होवे गुरु नानक साहब महाराज ने सज्जन ठग नूं सुधारता जी, गुरु नानक साहब ने बड़ी कंधारी दा हंकार उतारता जी। ओ प्यारिया ध्यान रखी, वो लोग ईमानदार सी, उन्होंने अपना हंकार छड्डिया, उन्होंने पराया हक खाना छड्डिया, ठगियां मारनियां छड्डियां, अपने अंदर भी ईमानदारी लिया। ते तू भी किते तन करके सारी जिंदगी ना चुकदा रही, मन करके भी चुक जाए। प्रवान कर लई बाबे की गल नूं, नहीं ते महाराज ने कह दिता, आसा की वार आप रोज सरवण करते हो प्यारे। ते धन गुरु नानक साहब महाराज जी का फैसला है, शीस निवाया क्या थी है, जा हृदय कसुते जाए। हो प्यारिया, जे गुरु की गल ना मनी ते तेरे मत्थे टेकन नाल भी गल बनने वाली नहीं है। कितना बड़ा फैसला है। महाराज ने आख्या, ठीक है दौलत खान, ठीक है काजी, शरीर दियां उठका बैठ के चल रही सी, ते फिर आखन लगे असी जुबान तो भी ते पढ़ रहे सी ना। महाराज कह लगे, हाँ जुबान ही पढ़ रही सी ना, मन किथे सी। और पढ़ो पातशाह दे बचन प्यारिओ, जे केवल जुबान नाल पढ़न नाल, क्योंकि साखियां चों तत लेना हुंदा है, जे केवल जुबान नाल पढ़ लिया, मन हाजिर नहीं, उठका बैठका मार लिया। ते सतगुरु महाराज नूं जदों मटन दी धरती ते ब्रह्मदास मिलिया सी, ते ब्रह्मदास ने की कीता होया सी जी, धर्म ग्रंथां दे गड्ढे लदे हुए सन, बड़ा वड्डा ज्ञानी अखवाउंदा सी अपने आप नूं। ते सतगुरु महाराज ने की आख्या, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दियां है,
पढ़ पढ़ भरिया साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइया, पढ़ पढ़ गड्डिया खात, पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेती आरजा, पढ़िया जेते सास, नानक लेखा एक गल होर मैं चखना चाह। ठीक है, ब्रह्मदास धर्म ग्रंथां दे गड्ढे लद लए, धर्म ग्रंथां नूं पढ़ के ते ज्ञान आवे, ज्ञान दे नाल निमरता आवे, ते ज्ञान एक ऐसा दीवा है जिहड़ा चानण करदा है। पर ध्यान रख लई, जिवें दीवा घर विच जगदा है, साडे कंट्रोल विच है ते ओह चानण दिंदा है। पर जदों दीवे दी अग कंट्रोल तो बाहर हो जावे ते कई बार घर नूं साड़ के सवाह करदी है। इवें धर्म ग्रंथां दा ज्ञान जीवन नूं चानण दिंदा है, पर जे किते इन्हां दा हंकार आ जाए ते जीवन नूं साड़ दिंदा है। याद रख ब्रह्मदास, तू हंकार विच है, तेरे अंदर हौमे है। ये की सी? केवल जुबान नाल पाठ कर लेना चंगी गल है, मैं ये नहीं कह रहा बाणी नहीं पढ़नी, पर केवल जुबान नाल पढ़ लेना, मन विच कुछ नहीं वसिया, मैनू माफ कर देना। फिर गुरु नानक साहब का फैसला है, प्यारिया गड्ढे लद्दी जाना, लद्दी जा। महाराज ने कहा दौलत खान जुबान फड़फड़ा रही है, शरीर बैठका ला रहा है, तो दौलत खान बैठा काबल कंधार विच घोड़े वेचदा है। किते नहीं पढ़ोगे प्यारे। ने आख्या बाबा सारी मस्जिद पुछ लो, मैं तो इत्थे ही हाजिर सी। अज किते गुरु नानक साहब पातशाह ने अगे नतमस्तक होने वाले नूं कह दो भाई गुरु नानक साहब की बाणी कहती है जात पात नहीं है। वो कहता नहीं नहीं इदा नहीं गल बनती, मैं तो अपनी जात पात लावांगा। सवाल जवाब ने दलीलां ने उहदे ते। जे आखदे हो भाई गुरु नानक साहब का फैसला है, दुबदा ना पढ़ो, हर दिन होर ना पूछो, मड़ा मसान ना जाई। महाराज जी का फैसला है आ वर्त नहीं रखने, महाराज जी का फैसला है श्राद्ध नहीं करने। अगों सवाल करी जाने। पढ़ के वेखो ना, जो सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज दुनीचंद कोले लाहौर गए सी, ते दुनीचंद की कर रहा सी जी? दुनीचंद अपने माँ बाप का श्राद्ध करा रहा सी। तो सतगुरु महाराज ने कहा दुनीचंद की करा रहे हैं? कहना महाराज मैं अपने माँ बाप का श्राद्ध करा रहा। सतगुरु ने एक गल दस, जिउंदियां की सेवा की है? जे जिउंदियां जी माँ बाप की सेवा की है तो तेनों श्राद्ध कराउण की लोड़ नहीं है। जे जिउंदियां जी सेवा नहीं की तेनों कराउण नाल तेनों कुछ लभण वाला भी नहीं है। प्यारिओ अज 552वां प्रकाश पुरब असीं बाबे नानक दा मना रहे हैं। अंदर झात मारिए कि श्राद्धा तो साडा कहड़ा छुट गया है। आसा की वार ते रोज पढ़ रहे हैं। जे मुहाका घर में है, घर में पितरी दे, अगे वस सिंझाणियां पितरी चोर करे, वड्डियां हाथ दलाल के मुस्तफी ये करे, नानक अगे सो मिले जे खड्डा कर लेते। तो जे फिर भी श्राद्ध कराए, वचन भी पढ़ी गए भी जीवत पितर ने माने को मुए श्राद्ध कराही, पितर पे बबरे कहो क्या पावे कौआ कुकर खाई। तो प्यारे फिर तो इसका मतलब खड़े उत्थे ही हैं। महाराज सतगुरु जी ने आख्या दौलत खान तू इत्थे नहीं। और काजी बोल पाया कहता ठीक है जे नवाब साहब नहीं सी तो मेरे नाल नमाज अदा कर दे। तो महाराज ने कह दिता काजी केवल धार्मिक लिबास पहनने नाल बंदा धर्मी नहीं बन जाता। ये याद रख, तू भी इत्थे नहीं है, घर ते तेरा भी घर विच किते वछेरी खूही विच ना डिग जाए। कितनी वड्डी सिक्ख्या इस साखी तो सानू मिलती है कि प्यारिओ जे बाणी पढ़नी है, जे गुरुद्वारा साहब आना है ते नाल नाल आपां अपने मन नूं भी लैके आए। ये ना होवे मन किते भज्जिया होवे, जिहड़ा पाठ कर रहे हैं पंक्तियां पढ़ दी है, पाठ किया गया नहीं। महाराज ने आख्या कि देख दौलत खान मन की हाजरी लगनी है। और ये लोग प्यारिओ ईमानदार सन। सतगुरु उन्हां लोगों के मददगार बने जिहड़े लोग भटके हुए सन, जिहड़े लोग भुल गए सन।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਖੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਦੇ ਕੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਕੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਨ ਦਾ ਕੋੜ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਨ ਲਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦੋਏ ਮੂੰਹ ਨਾਮ ਪਾਕ ਸੁਨਾਇਮੋ ਨਾਸੀਰ ਆਲਿਫ। ਆਲਿਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਅਨੁਭਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 5000 ਵਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੁੱਤ ਘਾੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਘਾੜਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਆਪਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕੱਢ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਕੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਲੋਕ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਥਾਲ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਰਾਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਰਾਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਰਾਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਾਲੇ ਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੂਪ ਮਾਲੇ ਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਹਵਾ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਬੁਲੰਦ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਈ ਪਾਖੰਡ। ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ,
सानू शब्द दे नाल प्यारे महाराज ने जोड़िया सी और आख्या सी एको है भाई, एको है साहिब मेरा एको है। एक दी गल है। आप बाणी नूं पढ़ लो, महाराज जी आखते ने एको एको है भाई, एको है साहिब मेरा एको है। कर्ण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई। जिथे भी बाणी च पढ़ोगे प्यारिओ एक दी गल है। सतगुरु ने सानू ना शरीरां नाल जोड़िया है, ना आकारां नाल जोड़िया है, ना रुखां नाल जोड़िया है। ध्यान देना, इहनूं इंज समझो। थोड़ा जिहा मैं होर इहनूं विस्तार दवां। चौपाई साहब दसी एक पंक्ति पढ़ते हैं। अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दी। सब तो पहला मालिक वाहिगुरु सी। ध्यान देना, ये नहीं है जो कायनात नहीं सी ते रब नहीं सी। आपां बचन पढ़ते हैं गुरु नानक साहब जी का मारू राग दे विच। अरबत नरबत धुंधुकारा, धरन ना गगना हुक्मा फारा। ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएगा। ये नहीं है कि जिस वेले धरती नहीं सी, आकाश नहीं सी, सूरज नहीं सी, चंद्रमा नहीं सी, तो उदों रब भी नहीं सी। रब तो उदों नहीं सी प्यारे। क्योंकि सिखा याद रख, तेरा रब है केड़ा, जेड़ा जमदा मरदा नहीं। ये पहला पछाण रखिए। जेड़ी चीज जमदी मरदी है, जेड़ी अज है कल नहीं है, नाश होने वाली है, वो रब नहीं है। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, समय रिया समाए। रब जमदा मरदा नहीं प्यारे। ना धरती सी, ना आकाश सी, ना कुछ भी नहीं सी। रब उस वेले भी सी। उस मालिक की मौज मनी, उन्हें कायनात साजी। आप बचन पढ़ते हैं गुरु नानक साहब जी का, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिया। उन्हें कायनात बनाई, कीता पसाओ एको गवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। उस मालिक की मौज बनी, उन्हें कायनात बना दी। कि जो कायनात बनाई, उन्हें चार खानियां बनाई। अंडस खानी, अंडस तो भाव अंडे तो पैदा होने वाले जी जिन्ने भी संसार के पंछी ने, वो अंडस खानी की पैदाइश की। जेरज खानी बनाई। जेरज तो भाव जेर तो, पानी तो, बेंद तो, वीरज तो। ते जिन्ने संसार के पशु हैं ते मनुख, ये जेरज खानी की पैदाइश है। अंडज जेरज सेतज। सेतज तो भाव है नमी, समय का प्रभाव। मीह पै जाना, धरती विच गडोए आ जाने, लकड़ नूं भुन लग जाना, सलाब पै जाए, सिर च गर्मी पै जाए, जुआ आ जानिया। ये भी एक खानी है, और ये भी उस मालिक वाहिगुरु ने बनाई। तो फिर है उत भुज, भाव धरती की कुख तो जिन्ने भी संसार के रुख हैं, ये उत भुज खानी की पैदाइश नहीं। तो प्यारिओ, इन्हां विचों कुछ भी रहन वाला है। ध्यान देना, रब सदीवी है, रब जमदा मरदा नहीं। ये पछाण है साडे रब दी। दुनिया के रब हो सकते हैं, कोई मन्ने, जमदे भी होणगे, मरदे भी होणगे, पर सिख दा रब आद सच जुगाद सच है, भी सच नानक होसी भी सच। सदीवी है। और गुरु से महाराज ने आख्या, जे किसी बंदे नूं रब मन्निया, जिस दिन बंदा मर जाएगा की आखोगे, रब मर गया। जिस दिन किसी रुख नूं रब मन्निया, वो रुख टुट जाएगा, फना हो जाएगा, की आखोगे, रब मर गया। जे किसी पत्थर नूं रब मन्निया, रब टुट गया, ये मनोगे। इसे करके महाराज कह लगे, याद रख, तू एक नाल जुड़ना है, वो सदीवी है। आकारा की पूजा नहीं, निरंकार की पूजा वाल महाराज ने जुड़िया। तो सतगुरु ने एको ही आख्या, जो सिद्धा ने सवाल किया, यही तो सवाल सी। आप बचन पढ़ते हैं, चार सवाल सिद्धा ने किए सी को पंक्ति। कवन आरंभ, कवन मत वेला, कवन गुरु जिसका तू चेला। कवन आरंभ भाव इस धरती की आरंभता कितों है। कवन आरंभ, कवन मत वेला, आ जिहड़ा समा कादे लई मिलिया है।
कवन आरंभ कवन मत वेड़ा कवन गुरु तेरा गुरु कौन है जिसका तू चेला जिहदा चेला है। ते सतगुरु महाराज जी ने किन्ना प्यारा आख्या पवन आरंभ हवा तो आरंभता है। प्रशादा 2-4 दिन ना मिले बंदा जिउंदा रह सकता है पर जे थोड़ा समा हवा ना मिले तो मौत है। महाराज कह लगे और हवा तो मूल है हवा आरंभ है पवन आरंभ सतगुर मत वेला ये समा मिले है सच्चे सतगुरु नाल जुड़न ले। ते की आख्या शब्द गुरु मेरा गुरु कोई शरीर नहीं मेरा गुरु कोई रुख नहीं मेरा गुरु कोई आकार नहीं। महाराज ने कहा मेरा गुरु शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला ते उस शब्द विच जदों सुरत जुड़ेगी बस वो चेला है। ध्यान देना इत्थे ना ते शरीर नूं गुरु आख्या शब्द नूं गुरु आख्या ते ना सिख शरीर है। जिस सुरत विच गुरु शब्द टिकेगा प्यारो उन्होंने आख्या गया चेला वो सिख है जिहदी सुरत विच गुरु दा शब्द टिकेगा। जे गुरु दा शब्द नहीं टिकिया ते प्यारो उस सुरत दा नाम सिख है ते वो शरीर भी कभी सिख नहीं अखवाएगा। महाराज ने आख्या पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सो गुरु नानक से महाराज ने एक नाल जोड़िया ते लास्ट अखर है कबीर कक्का जिहदा अर्थ है कबीर ते कबीर दा अर्थ है वड्डा। सतगुरु जी ने फारसी विच भी ये वचन उचारिया जो आप पढ़ते हैं यक अर्ज गुस्तम पेश तो दरगोश गुण करतार हका कबीर करीम तो बेहै परवरदिगार कि गुरु नानक से महाराज सारियां तो वड्डे ने सारियां तो ताई दा भाई गुरदास ने आख्या कि बाबा नानक ना कल्ले हिंदुआं दा ना कल्ले मुसलमानां दा बाबा नानक ज़ाहर पीर जगत गुर बाबा ते धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने कहा ज्ञान ध्यान विश्वकर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सो गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां ने दुनिया नूं नियामतां वंडियां जिहड़े दुनिया दे मददगार बने जिन्हां ने सानू एक अकाल पुरख नाल जोड़िया ते धन गुरु नानक साहब महाराज सारियां तो वड्डे ने। सतगुरु कृपा करे जिथे असी गुरु नानक साहब पातशाह जी का 552वां प्रकाश पुरब मना रहे हाँ उसे जिनकी यादों को मनाते हो कभी उनके जज्बातों को भी समझा करो। वैम परम पखंड शरीरां दे आकार इन्हां को तोड़ के सतगुरु ने सानू निरंकार नाल शब्द नाल जोड़िया है। सो गुरु रहमत करे बाणी नाल जुड़ो अमृत छको गुरु वाले बनो। ये सतगुरु महाराज जी के पावन जीवन तो सानू सिक्ख्या मिलती है। सो आप समूह संगतां नूं धन गुरु नानक साहब महाराज जी के पावन प्रकाश पुरब दी लख लख वधाई होवे। ते एक वधाई मैं होर नाल च देना चाहुंदा जिस तरह आपां नूं पता लगा है कि सेंटर सरकार ने 3 जो काले कानून बनाए सी उन्हां नूं वापस रद्द करन दा जिहड़ा फैसला लिया है इस करके भी अज समुचे किसानां दी समुचे पंजाब की समुचे उन्हां महान योधे जिहड़े लगातार 1 साल तो बैठे हुए सन अज जित प्राप्त हुई है। ये भी गुरु नानक साहब की कृपा हुई ते धन गुरु नानक साहब पातशाह जी के प्रकाश पुरब ते सतगुरु ने इन्नी वड्डी गुरु साहब ने नियामत बख्शी है किसी बंदे ने नहीं बख्शी। सो आप समूह संगतां नूं इस दी भी लख लख वधाई होवे। इन्नियां बेनतियां प्रवान विचारा करदियां होइयां भुलां दी खिमा पावन बाणी दा सत्कार शब्द भेट माया सतगुरु जानी जान समूह संगत नूं दरों करो नामदान गुर सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। गुरुद्वारा साहब की कमेटी का धन्यवाद गुरु घर के सत्कारयोग ग्रंथी साहब जी का धन्यवाद आप समूह संगतां का धन्यवाद कोटान कोट शुक्र गुरु ग्रंथ साहब जी का जिन्हां दी रहमतां सदका विचारा करन दा सुभाग बख्शिश होया। परवानो फतेह गज कभी भी सिख धर्म नहीं छड़ा ना छड़िया है ना छड़ेगा ना पहला छड़ेगा ना हुण छड़ेगा ना आगे छड़ेगा हमेशा ही चढ़ती कला चाहेगा। साथ संगत जी फतेह बुलाया करो एक बारी होर जनारा बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। एक आदमी होर बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। नौरवे दी संगत
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੜੀਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮੇਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ श्री शारदा प्रसाद नायक जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पूरा सिख जगत श्री नवीन पटनायक और शारदा प्रसाद नायक जी का उठान को धन्यवाद करता है। मैं सोचता कि पहला चीफ मिनिस्टर है जिन्हें सिख कौम को इस कार्य के एडा बड़ा सहयोग किया। माया भी जगह भी हर तरह का तन सहयोग किया है। साथ संगत जीओ, आज जो आपको परेशानी हो रही है, जगह घट है, आप गुरुपुर बहुत बड़ा संगत इकट्ठा मार रही है, पर ये अगले साल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास वो मैदान है, वो आ जाएगा और बढ़ के आ जाएगा और आप सामने मैदान कर पाएंगे। तो आप आशा करिए जितना आप हर चीज वास्ते अरदास करके दर्शन करने आप दर्शन नित करिए, कामयाबी जरूर मिलेगी, गुरु महाराज की बख्शिश होगी। एक सेवा इस कार्य वास्ते गवर्नमेंट और सारे हिस्से जगत को खुशी मिली है, एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफा मिला है। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। साथ संगत जी, आप जी ने समूह संतान ने तन मन धन के नाल ना दिन देखिया, ना रात देखी, ना समा देखिया। बुजुर्ग बच्चे मातावां भैणां, खास करके मातावां भैणां का उठान को धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने सारी रात जाग के गुरु घर की सेवा निभाई है और सारी रात लंगर बनाया है, सारी रात प्रसाद बने हैं। उन्होंने ये महान सेवा है। गुरु महाराज सारियां की सेवावां, सारियां दी बिल्कुल भेटा सरदार सारियां दी अरदासां करके प्रवान करें। गुरु के अरदास है, गुरु महाराज सारे लेकर अमृत दीदा के नाम दीदा जरूर बख्शन और इसी तरह गुरु का प्यार बख्शन। और आप मेरे सामने वाहे गुरु जी गुरु नानक आया। आओ सारी ही संगत ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। सारी ही संगत नानक गुरु की कृपा करियो जी। थोड़ी बाहर कर दो भैया, भैया थोड़ी बाहर कर दो। कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। जपो जी गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। सुनी पुकार दातार प्रभ, सुनी दातार प्रभ गुरु नानक जग माहि पठाया, गुरु नानक जग माहि पठाया। चरण तोए रह रास कर, चरण तोए रह रास कर।
नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। राना रंग बराबरी, राना रंग बराबरी, पैरी पवना जग बरताया, पैरी पवना जग बरताया। उल्टा खेल विरम दा, उल्टा खेल विरम पर शीस निवाया, पैरां पर शीस निवाया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, करो कृपा गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। कल जुग बाबे तारिया, कल जुग कल जुग बाबे तारिया, सत नाम पढ़ मंत्र सुनाया, सत नाम पढ़ मंत्र सुनाया। कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। सुनी पुकार दातार प्रभु, सुनी पुकार दातार प्रभु। गुरु नानक जग माहि पठाया, गुरु नानक
प्रभ पूरा। दान दे, दान दे, दान दे साधु की तोरा। अंतर्जामी सो प्रभ पूरा, अंतर्जामी सो प्रभ पूरा। दान दे, दान दे, दान दे साधु की तोरा। दान दे, दान दे, दान दे साधु की तोरा। कर कृपा रब दीन दयाला, तेरी ओट पूरन गोपाला, तेरी ओट कर कृपा रब दीन दयाला, तेरी ओट पूरन गोपाला। अंतर्जामी सो प्रभ पूरा, अंतर्जामी सो प्रभ पूरा। दान दे, दान दे, दान दे साधु की तोरा। दान दे, दान दे, दान दे
कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी, करो कृपा राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। आठ पहर हर के गुण गाए, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए, प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई, हर जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आए जिस डिठे एक बहादुर सिमरिए, कर नौन दियावे ताय। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जिसनू नदर करे सो त्याए, आठ पहर हर के गुण गाए। अंतर जामी सो प्रभु पूरा, अंतर प्रभु पूरा। दान दे अंतर जाती सो प्रभु पूरा, सो प्रभु पूरा। दान दे, दान दे, दान दे साधु की पूरा। दान दे, दान दे, दे साधु की पूरा। गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਦਾਰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ करके यूट्यूब पे सुनते हैं, और ये सेवा जो है पूरी निष्काम सेवा है। उन्होंने कभी भी कोई पैसा नहीं लिया। गुरु महाराज कृपा करण, तंदुरुस्तियां बख्शण, बल बख्शण, तो इसी तरह गुरु घर की सेवा करके गुरु दी खुशियां प्राप्त करन। मैं मणि सिंह को बेनती करांगा स्टेज ते आउण और गुरु घर का जो सम्मान है सर्वभाव वो ग्रहण करन।
सरदार मणि सिंह जी को बेनती है कि वो स्टेज से आके गुरु घर का सम्मान ग्रहण करें। हमेशा ही कमाओ किसी एरिया को लेटर देना होगा किसान आंदोलन का बोले सोनिहा इन्होंने नाम भी चैनल का और बसिक चैनल रखा है। सत्संगतियों जो अगला प्रोग्राम है आज रात का जो प्रोग्राम है श्री गुरु सिंह सभा होएगा रात 9 बजे तो लेके 12 बजे तक उपरांत चाह नाश्ता आतिशबाजी का प्रोग्राम होएगा। इसके नाल ही 21 तरीक का जो दोपहर का प्रोग्राम है गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब बेद व्यास सवेरे 11 बजे तो लेके 1 बजे तक प्रोग्राम होएगा। तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा सोए बंग दुआ सगला बन हरा अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह गनीम तेरी सिफत सच्चे बादशाह अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह तेरे कदम सलाह सच्चे बादशाह गनीम तेरी सिफत सच्चे बादशाह खूब 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 तेरो नाम झूठ 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 दुनी को मान खूब खूब तेरो नाम झूठ 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 दुनी को मान झूठ 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 दुनी को मान अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह गनीम तेरी सिफत सच्चे बादशाह गनीम तेरी सिफत सच्चे बादशाह गज तेरे बंदे दीदार अपार नाम बिना सब दुनिया सार नितरिया तार
निवाज गरीब निवाज दिन रैन ते आए अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह अचरज तेरे कदम सलाह गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह नानक का खुद खसम मेरवान अल्लाह ना बिसरे दिल जी परान साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को देदा सतनाम 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 दा चक्र फिराया सतनाम 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 दा चक्र फिराया जीती नौ खंड मेदनी जीती नौ खंड मेदनी सतनाम दा चक्र फिराया सतनाम 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 दा चक्र फिराया सतनाम 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 दा चक्र फिराया सतनाम 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 जी वाहिगुरु 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 जी जपो सतनाम जी वाहिगुरु 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 सतनाम 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 दा चक्र फिराया सतनाम 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 दा चक्र फिराया नानक का खुद खसम मेरवान अल्लाह ना बिसरे दिल जी परान अल्लाह ना बिसरे अल्लाह ना बिसरे दिल जी परान अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह अचरज तेरी कदम सलाह गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी राम
कली महला तीजा नंद को ओंकार सतगुर प्रसाद नंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया राग रतन पदवार परिया शब्द गावना शब्द होता गावरी किया कह नानक नंदो सतगुरु मैं पाया मन मेरे नाल रहो तो मन मेरे भोग सब विसाया समरत स्वामी सो क्यों मनो सारे कह नानक मन मेरे साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम अनुसार कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे साचा नाम मेरा नाम नादाल मेरा दिल भूखा सब गवाया शाम से सदा कुर्बान बिना गुर बेटो दस्तियां बटियान शब्द करो पे आओ साचा नाम मेरा यादारो वाजे पर शब्द का दास बगे शब्द वाजे कला गुदर धारियां नंद सुनो वट भागियो सगल मनोरथ पूरे रब पाया तेरे सगल वसूले रूबरू संगा तेरा सुनी सच्ची बानी सुनते पनीत कहते सतगुर रहया पर गुर चरण वाच अनहद बोला श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता दत्त मात मुरिया बच्चे दर्पो दूर करनी अपो आप के नेड़े कह जिंदगी नाम ते आया गए मुशक्कत काल नानक दे खेती छुट्टी जिनी नाम ते आया नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम पैर दास मात पिता बाबू मैं हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नान दे आवे तहाए सब थाई होए सुहाए दसवां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई होए सुहाए दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान रखे भला जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हट्ठियां जप्पियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अणरठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान रखे खालसा जी बोलो जी जिन्ना सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਲਾ ਜੀ
ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬਹਲਾ ਜੀਵ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸਵਾਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਲ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕਰਸੋ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਖਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਰ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ ਰਹਾਉ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤੇ। ਸੁਨੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਚੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। इसी संगुण आया शायद क्वार्टर ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੌਕ ਕਲਾਸਿਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं सारे भारतवासियों को, पूरे विश्व को जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के 552 प्रकाश दिवस की कोटि कोटि बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी के आने के पहले जो संसार की अवस्था थी, मैं उसके लिए 4 शब्द आपके लिए कहना चाहूँगा। जात पात चरम सीमा पर था, जुल्म चरम सीमा पर था, स्त्री को पाँव की जूती समझा जाता था, राजे अत्यंत प्रजा को दुखी करते थे। इसके साथ साथ ही लोग प्रभु ईश्वर को भक्ति भूलकर इंसान की भक्ति करने लग गए थे।
इसके साथ साथ ही लोग एक दूसरे को कत्ल करना, किसी को गुलाम बना के रखना और कर्म कांड, पूरा संसार उसमें सम्मिलित हो गया था। प्रभु ईश्वर का दरबार छोड़ के वो कर्म कांडी हो गया था और भगवान की को तो एक तरह से पूरा भूल ही गया था ईश्वर भक्ति को। गुरु नानक जी के आने के बाद में गुरु नानक जी ने स्त्री के उत्थान के लिए पूरा जीवन कार्य किया और आज आप देखते हैं सिख समाज में नर और नारी को पूरा बराबर का हक है। ये भी आप देखते हैं जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसकी प्रधान एक आज लेडीज़ है, तो ये बराबरी का हक गुरु नानक जी ने दिया है, बराबर का हक। इसके साथ साथ ही जुल्म के खिलाफ उन्होंने पूरी आवाज़ उठाई और जुल्म को उस समय मिटा के हमारे देश को आज़ाद करने के लिए गुरुओं का महान योगदान रहा है। उसके साथ साथ ही ईश्वर भक्ति को उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया। तकरीबन 65,000 किलोमीटर चल के बांग्लादेश से लेके रशिया तक, इधर चाइना से लेके श्रीलंका तक, बगदाद, काबुल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह, यहाँ की उड़ीसा के पुरी में भी उन्होंने 1.5 महीना अपना समय व्यतीत किया और पूरे देश का भ्रमण करके एक ईश्वर की भक्ति, एक इंसानियत का उन्होंने संदेश दिया, जात पात को मिटाया और हर तरह से समाज को एक अच्छा समाज गठित किया, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं कि सिख जगत जहाँ भी बैठा है संसार में वो हर ज़रूरतमंद की सहायता करता है। कोविड का समय देखिए या और कभी भी कोई मुसीबत आती है या देश की सुरक्षा की बात हो तो सिख हमेशा आगे बढ़ के ये कार्य करता है। और आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस पर रौरकला श्री गुरु सिंह सभा में 12 तारीख से लेके अभी तक प्रोग्राम चले हैं। 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक रोज़ सुबह 3:30 बजे से लेके सुबह 6:30 बजे तक भजन कीर्तन होता था। उपरांत प्रसाद का वितरण होता था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर प्रभु ईश्वर की भक्ति का आनंद उठाए हैं। और आज 19 तारीख को श्री गुरु सिंह सभा में सुबह 5 बजे से लेके दोपहर 2:30 बजे तक भजन कीर्तन हुआ, जिसमें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महान प्रचारक भाई अजीत सिंह जी पहुंचे थे। इसके साथ ही हमारे श्री गुरु सिंह सभा के कीर्तनी जथा गगनदीप सिंह जी, इन्होंने कीर्तन करके, कथा करके पूरी संगत को मुक्त कर दिया और धन्य धन्य कर दिया। सबने भगवान की भक्ति का आनंद उठाया और साथ साथ ही गुरु का अटूट लंगर चला है। आज शाम को भी श्री गुरु सिंह सभा में 9:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। कथा, भक्ति, कीर्तन होगा, उसके बाद चाय नाश्ते का प्रबंध किया जाएगा। और आज श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में भगवान से प्रार्थना की गई कि हमारे देश में सब कोई खुशहाल हो, जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरी हो, सब भाईचारा कायम हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पूरे विश्व के लिए शांति का आज अरदास की गई है। और एक और बहुत महान एक जो आज कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाया है, जो उन्होंने, मैं नहीं कह सकता कि वो किस हालत में उन्होंने 3 कृषि कानून बनाए थे, जिसे कि ये कृषि प्रधान देश है और ये 3 जो काले कानून बनाए थे ये किसानों को मंजूर नहीं था। एक बात कहूँगा कि सबसे पहले पंजाब के किसानों ने इस आवाज़ को बुलंद किया और पूरे देश में फैलाया और आज तकरीबन 1 साल की मेहनत, पूरी हर गुरुद्वारे में अरदास होती थी कि ये कानून वापस हो। आज भगवान ने हमारी अरदास को कबूल किया और हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भगवान ने सद्बुद्धि दी। और एक ये कृषि प्रधान देश है, 70% जो आबादी है वो किसानों की है। उन्होंने एक ये काला कानून जो 3 वापस लेके एक सराहनीय कदम उठाया है। हम इस आज के उनके इस ऐलान का जो उन्होंने कानून वापस लिए हैं, हम उनको बधाई देते हैं। और मैं सोचता हूँ कि आगे भी वो पब्लिक के भले के लिए और पूरे देश के भाईचारे के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जो महंगाई है उस पर भी कंट्रोल करेंगे और हम सबकी
भलाई की शुभकामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो निहाल। सत श्री अकाल।